السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر خارجہ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس سے۔ بہت شکریہ جند، بہت شکریہ۔ جنید کو میں پیار سے جند کہتا ہوں۔ تھینکس۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں 4 سو جو دھند کی فضا پھیلی ہوئی تھی جی وہ تقریباً چھٹ چکی ہے، چڑھ چکے بالکل سر۔ اور 3 مارچ تک انشاءاللہ مسئلہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ جی اتنا صاف کہ سینٹ کے افق پر آپ کو پی ٹی آئی کا چاند چمکتا ہوا صاف دکھائی دے گا، کیا کہنے شاہ جی۔ اور پی ڈی ایم جو اپنے مسموم ارادوں سے جی کسی اور قسم کا چاند چڑھانا چاہتی ہے، جی ہم ایسا ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے لیے بے شک ہمیں چاند پہ موجود چرخے والی مائی سے کیوں نہ رابطہ کرنا پڑے۔ واہ واہ اور برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں، جی that lady belongs to ملتان۔ چاند والی مائی ملتان کی ہے؟ Oh yes۔ ظاہر ہے اتنی صدیوں سے جو وہ چرخہ کاٹ رہی ہے تو اتنی کاٹن تو ملتان بیلٹ میں ہی ہوتی ہے نا۔ اور ویسے بھی جند آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جو آپ کو ملتانی کڑھائی اتنی پاپولر نظر آتی ہے جی وہ اسی کے بنے ہوئے دھاگے سے کی جاتی ہے۔ ملتان سلطان زندہ باد، شاہ محمود قریشی زندہ باد، جی بھٹو۔ یار یہ کہنا موصوف کا کسی دن ہیٹ اتار کے دیکھیے بیچ میں مغز بھی ہے یا نہیں۔ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے جی سر۔ اور لے کس طرف جاتی ہے؟ بات ہو رہی تھی چاند والی مائی کے ڈومیسائل کی۔ جی جی سوری جی ہاں، that old lady belongs to ملتان۔ How you can prove it؟ Who know the domicile منگو ہما؟ یہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے کہ چاند والی مائی کا تعلق ملتان سے ہے۔ بلیو کرو نا، بس شاہ جی نے کہہ دیتا تو کہہ دیتا۔ کیا جی آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، کوئی تو ثبوت ہوگا نا آپ کے پاس۔ بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، ابھی ہتھیلی پہ سرسوں جمائے دیتے ہیں۔ جب بھی 14ویں کا چاند چڑھتا ہے جی موصوفہ زمین پہ ہماری طرف دیکھ کے سرائکی میں کہتی ہے، مودی اللہ بھاوے آج تے 14ویں دا چاند زمین تے چڑھا ہویا ہے۔ اس سے بھی اس کی شریعت تو ثابت نہیں ہوتی نا۔ شاباش، اس سرائکی اور سری لنکا وچ بولی ویندی ہے۔ اچھا جی، سری لنکا سے یاد ہے، آپ کا سری لنکا کا دورہ کیسا رہا؟ ٹچ وڈ، میرے منہ کی بات چھین لیا۔ ابھی یہی میں کہنے والا تھا کہ کیڑی چند دی مائی ٹوٹ پیو، جیڑا سی تھلے چند چڑھایا وہ دا بھی تے پوچھو۔ یقین مانیے جنید، اتنا سکسیسفل دورہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی حکمران نے نہیں کیا۔ اگر 2-4 دن ہمیں اور مل جاتے تو ہم نے سری لنکا میں سری دی لنکا ڈھا کے آنا سی۔ جن تمہیں کیا بتاؤں، اتنا پیارا انسان سری لنکا کا وزیر اعظم، اور اتنا سادہ۔ دیکھو ذرا، دھوتی کے اوپر شرٹ پہنے پھر رہا تھا اور ٹائی بھی لائی ہوئی سی۔ بندہ پوچھے جے تیری پینٹ لے دھوبی کو لو منڈا لے کے نہیں آیا تو انی دیر ٹائی نہ لا۔ اگر سادگی دیکھو اس کی تو اسے کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اتنا پیار کر رہا تھا ہمارے ساتھ کہ امی کو کہنے لگا کہ امی، اچھا عمران خان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، کہنے لگا امی اگر مجھے اپنے لوگوں کے شور و غوغے کا ڈر نہ ہو تو میں اپنے ملک کا نام بھی پاکستان ڈکلیئر کر دوں۔ ہم نے بھی پھر ان کے جذبات کو مد نظر کھلے عام پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت کر ڈالی۔ لیکن شاہ جی، سری لنکن سرمایہ کار کیا سرمایہ کاری کریں گے پاکستان میں؟ جنہیں کسی دی توفیق ہوں دی وہ نہیں کردا ہے نا۔
ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਲੈਂਦੇ हो हाँ हाँ मैंने खुद देखा शोरबे में गुड़ डाल के खा रहे थे बंदा भुजे छोलियां च गुड़ पा लेंदा है हुक्के च गुड़ पा लेंदा है यार तू शोरबे च पा लिया और शाह जी उस दिन जरा मिर्चा तेज सन इसलिए थोड़ा जिहा पा लिया मैं शाह जी आप किधर निकल गए बात श्रीलंका के दौरे की हो रही थी जिंद अगर रस्ते च कोई सानू अपने दरबार दा मलंग मिल जावे तो ओदे नाल गलबात ना करिए शाह जी इतना जबरदस्त आप लोगों का वहां पे इस्तकबाल किया गया है कोई वज़ीर आज़म की मुलाकात का हाल अहवाल सुनाए इस्तकबाल तो ऐसा हुआ जुनेद जब हम उतरे वहां जी और श्रीलंका के वजीर आजम की नजर शाह महमूद पे पड़ी आप पे पड़ी दौड़ के आया मेरी तरफ अच्छा वो तो हमने कहा कि जरा संभल के तुसी धोती बननी हो ये कहने लगे शाह जी जब नजर आपके चेहरे पे पड़ जाए तो फिर कहां बर्दाश्त होता है भाग के आके गले लगा लिया और जब हाथ पकड़ के वजीर आजम हाउस की तरफ चल निकले तो रास्ते में इमरान हमें बार बार कोनियां मारते रहे क्यों मेरा भी तारुफ कराओ ना हमने फिर बताया मोहिंदा भाई ये है वो इमरान जिनको हमने अपनी जगह वजीर आजम बनवाया है फौरन हमारी तरफ हाथ जोड़ के गोया हुए शाह जी आपके वजीर आजम हैं तो हमारे भी वजीर आजम हैं लेकिन शाह जी इसमें क्या है ये तो उनका ग्रीटिंग का स्टाइल है सब कोई करते हैं वो तू जाके वेख जे तेरे वास्ते वो नहीं खातरी चुके आते तां कहीं बात मोहब्बत और जज्बात की होती है वाह जी वाह वाह जी वाह जो हम एक दूसरे को मिलके एक दूसरे को देख के पेश करते हैं क्या बात तो है ये उन्होंने हमारे सामने अपने जज्बात पेश किए वाह वाह और जुनैद यकीन मानिए जब 1-to-1 मुलाकात होनी थी दोनों तरफ के वज़राए आज़म की वो तकरीबन पौन घंटा लेट हुई क्यों चूंकि मोहिंदा बजिद थे कि शाहजी विच बहन गए असी ते निगल करांगे हमने फिर बकलम खुद अंदर जाके कहा भाई मोहिंदा सानू करावी ना शर्मिंदा ये 1-to-1 मुलाकात है इसमें हम नहीं बैठ सकते तो कहने लगे शाह जी खुदा के लिए अगर बैठ नहीं सकते तो यहाँ खड़े होके कम से कम 1 2 3 ही कह जाइए बरकत के लिए कहा होगा नहीं बरकत के लिए नहीं मैं तो लाफ्टर लेने के लिए कह रहा जब मुलाकात खत्म हुई हम अंदर गए तो क्या देखते हैं कि इमरान का चेहरा पसीने से शराबूर है हमने जेब से टिश्यू निकाल के दिए हौसला कीजिए क्या हुआ कहने लगे शाह जी ताड़े बगैर गल करना बड़ा मुश्किल है अच्छा शाह जी तोहफों के भी तबादले हुए क्यों नहीं सरकारी सतह पे तो लाजमंद होते हैं मगर हमने तो निजी सतह पे भी तोहफों के तबादले किए आप क्या लेके गए थे शाह जी हम तो मोहिंदा भाई के लिए सोन हलवे की 2 टिक्कियां लेके गए थे मुझे इतनी होती है ना खाओ ते मुकदियां नहीं फिर मोहिंदा भाई ने हमें एक छोटा सा हाथी तोहफे में दिया हम तो चूंकि मसरूफ थे हमने जुल्फी बुखारी के हवाले कर दिया वो फिर 3-4 दिन उधर ही शटाला पकड़ के उसे पीछे पीछे लाता रहा फिर बेचारा जुल्फी भी थक गया और हाथी भी थक गया हमने फिर मोहिंदा भाई को वापस कर दिया क्यों भाई कहाँ लिए फिरते उसे हमने वापस कर दिया उन्होंने तो बड़ी जिद की कि नहीं शाह जी लेके जाओ और मैं कहा यार एडा निका हाथी ऐसी आलूआ च पाना है शाह जी आपने कहना था हम अपने पहले हाथी वापस कर रहे हैं और क्या करने हैं हमने ज़ाती कमजोरियां तो नहीं ना किसी को बताती ये डिप्लोमेसी शाह जी ले आंदे हाथी दा बच्चा मैं गोद ले लेना सी ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਸੀ शाह जी ये जानवरों से बहुत मोहब्बत करता है शाह जी इत्थे चिड़िया घर दे च नहीं हैगा हाथी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸੁੰਡ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ
ਮੈਂ ਸੁੰਡ ਲਾ ਤੇ ਲਵਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ चलो तेरा साह बंद होता है ना चिड़िया घर से खुल जाएगा गोगा जी ये पेशकश कबूल कर ले, सारा दिन खाने को गन्ने मिलते हैं मुफ्त में। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਾਉ ਜੀ ਕੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਕਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਾ ਲਾਈ ਬਸ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੀ नाज़रीन यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लोग अब अपनी बच्चियों के रिश्ते करने के लिए गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी। कि जनाब गांव में हमारा रिश्ता नहीं आ रहा, बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। भाईजान आज आपके सामने एक लम्हा फिक्रिया रखना चाह रहा हूं, जरा दर्द दिल के साथ इसको महसूस करने की कोशिश करें। हम मुख्तलिफ जाविये से पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन अब ये मामला जो है ना हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। वो है हमारे यहाँ खास तौर पे पंजाब में पेंडू लफ्ज का इस्तेमाल, कि तुम पेंडू हो। तब अजीबो गरीब हमने ये अपनी एक नफ्सियात बना, ठीक से ड्रेसिंग नहीं की हुई, पेंडू। हाँ जी। अगर आपका लहजा ठीक नहीं है, पेंडू। अगर काम ढंग से नहीं किया, पेंडू। अगर तालीम ठीक नहीं है तुम्हारी, पेंडू। उठना बैठना ठीक नहीं, पेंडू। गाड़ी नहीं चलानी आती, पेंडू। पेंडू। अच्छा अगर आप जरा थोड़ी सी तहकीक करवाएं ना जी जी। तो आपकी अद्धे से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पेंडू है। एग्जैक्टली। यानी पेंडू से मुराद मेरी ये है कि पिंडों के रहने वाले। हाँ। आपके अद्धे से ज्यादा डॉक्टर पिंड के हैं। आपके बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग, बड़े बड़े जजेस और बड़े बड़े ऑफिसर्स जी। वो पिंड से यही belong मैं अर्ज करने लगा हूं ना कि पेंडू जिस पैराए में कहा जाता है, मतलब आम तौर पे जो बिल्कुल एक गलत तस्वर है और उसी पर हम बात करना चाह रहे हैं कि कम इल्म हो तो पेंडू, अगर तहजीबो तमद्दुन से ना आशना हो तो पेंडू। तो उससे फिर बचते कितने लोग हैं? 2-3 बड़े शहरों के 2 या 3 पॉश एरियाज वही बचते हैं ना। और वो जो 2 या 3 पॉश एरियाज हैं वो भी कब आबाद हुए, कहां से आबाद हुए? वहां की अक्सरियत भी पेंडू है। फिर यार आप ये डीएचए में चले जाएं तो कई घर वालों ने गिले गद्दे बनेरियों पे डाले होते हैं। Exactly. अच्छा अब बात यह है कि ये मामला जो है ये किस कदर हमारे माशरती सतह पे संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, इसलिए बात करना इस पे जरूरी है कि लोग अब अपनी बच्चियों के रिश्ते करने के लिए गांव से शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ जी। कि जनाब गांव में बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। कितने अफसोस की बात है, बच्ची शहर आके पढ़ रही है, एमबीबीएस की है, एमबीए की है, लेकिन चूंकि उसके माँ बाप जो हैं वो गांव में रहते हैं तो लड़के वाले इसलिए रिलक्टेंट है रिश्ता करने में कि जी बच्ची रहती तो गांव में है ना, चाहे वो लड़के से 100 गुना ज्यादा तालीम याफ्ता और तहजीबो तमद्दुन वाली हो और लड़का जो है वो नाक यूं साफ करता हो। हाँ जी ये तो बड़ी बेवकूफों वाली बात है। ये असल में ये है रवाज। और रवाज जो होते हैं ना वो 80% गलत भी रवाज पकड़ जाते हैं, साइकी बनी हुई है हमारी, साइकी बन जाती है। ये बिल्कुल बेवकूफों वाली बात है। मैं समझता हूँ कि मैं कम से कम मैं जितने भी अपने दोस्त ऑफिसर्स को जानता हूँ जी जी। उनमें मेरा ख्याल है कोई 80-90% गांव से ताल्लुक है। अच्छा अब मसला पता है क्या है, लोग भी जो गांव में रहने वाले हैं उनको भी हमने नफ्सियाती दबाव का शिकार कर दिया है। तो मुल्तान के करीब किसी गांव में रहने वाला है, उसे पूछे कहाँ के हो तो वो मुल्तान के करीब गांव का नाम नहीं लेगा, वो बेचारा मतलब शर्माते हुए कहेगा मैं मुल्तान का रहने वाला हूं। यार फखर से बताओ, लेकिन हमें इस काबिल नहीं छोड़ा फखर से बताओ। 10 मैं ठीक रही हूं रहने वाला हूं। नहीं इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो अल्लाह के फजल से बताता हूँ कि मैं लंदन नहीं पला बड़ा हूँ। लंदन के करीब एक गांव में पंबे चुकी है। यार लंदन के करीब कौन सा पब्बे चुका? अच्छा मेरी बात सुनो, फिर वही मजाक, हम खुद मजाक शुरू कर रहे हैं। लेकिन असल में हम मैं सारे ये मजाक मयूक इसलिए करता हूँ कि इजी हो जाओ यार। हम भी जब मजाक अपने करते तबीता हैं चो तकब्बर, अपने तबीता चो एहसासे कमतरी कट दियो। एग्जैक्टली। असल में अपनी जिंदगियों को इजी गोइंग बनाना चाहिए, आसान जिंदगियां बनाए यार। हमने किस कदर फजूल किस्म के कॉम्प्लेक्सेस पाल लिए आप हैं, यकीन पूरी दुनिया में मानो। कहीं नहीं है ऐसे कॉम्प्लेक्सेस यार। आप यकीन मानो कि मुझे एक बंदा एक दफा कहता है जी कि अजीजी साहब आपने उर्दू खराब कर दी है। मैं कहूँ गल सुन, मैं क्यों गुलाबी उर्दू बोलता हूं? इसलिए
کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیچارے اردو بولتے ہوئے اس لیے شرماتے ہیں ان کو بولنی نہیں بہت زبردست بات کی تو یار بولو جو جی ہے مجھے شروع میں لوگوں نے کہا نا یار تیرے اردو چو گجراں والا نہیں جانتا یار میں گجراں لے جمے ہیں تو گجراں اس میں کون سی بری بات تم نے بڑی زبردست بات کی اور زبردست پردہ بھی ڈالا لیکن بات یہ پردہ ہے اس لیے ڈالا ہے آپ کو وضاحت کرتا ہوں میں نے جب شعیب ہاشمی صاحب کو اردو بولتے ہوئے دیکھا نا اور پھر یہ بھی منظر دیکھا ہوا ہے کہ شعیب ہاشمی صاحب چونکہ جی سی کے پروفیسر سینئر موسٹ بندے ہیں وہ ایک دفعہ سیکٹریٹ گئے تو سارے سیکٹری اٹھ کے باہر آ گئے سار رائے ہوئے ہیں سارے ان کے شاگرد تو اردو ایسے ہی بولتے تھے سنا دیدی کی حال ہے تیرا اور کدھر پھرتے رہتے ہوئے اس طرح بولتے ہیں یہ جیسے تم بات کر رہے ہو نا میرے ایک انگریزی دان دوست ہے اس سے میں نے پوچھا کہ تمہیں پاکستان میں سب سے زیادہ اچھا انگریزی بولنے والا کون سا بندہ لگتا ہے کہنے لگا جی اعتزاز احسن صاحب میں نے کہا کیوں کہنے لگا اعتزاز احسن بنا کے نہیں بولتا نہ وہ امریکی لہجے میں بولتا ہے نہ وہ برطانوی لہجے میں انگریزی بولتا ہے وہ اپنے لہجے میں انگریزی بولتا ہے اور کوئی دیسی لہجہ بھی نہیں ہوتا بالکل مناسب لہجہ ہوتا ہے اعتزاز صاحب کا تو اپنے لہجے میں اردو بولنا اپنے لہجے میں پنجابی اپنے لہجے میں انگریزی بولنا سب زبانوں کا اپنا ایک رنگ ہے اور اپنے علاقوں کا بھی اپنا رنگ ہے اب دیکھو نا چودھری اعتزاز احسن کتنا بڑا وکیل 10,000 روپیہ ایک کیس کا لیتے ہیں اچھا ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے اس زمانے وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی ہے نا یہ موبائل ٹیکنالوجی آ گئی ہے انٹرنیٹ آ گیا ہے تو کون سا فرق رہ گیا گاؤں میں اور شہر میں بھائی جو فیشن یہاں پہ آج آپ دیکھتے ہو بڑے شہروں کے پوش ایریاز میں 4 دن بعد وہ کسی چھوٹے شہر میں گاؤں میں قصبے میں پہنچا ہوتا ہے کون سا آپ تیر مارتے ہیں بڑے شہر میں رہ کے یار میں اس حوالے سے ایمان سے یہ جو سردار سکھ ہیں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں وہ سارے گاؤں کے جتنے بھی پنڈوں کے رہنے والے ہیں وہ ذرا نہیں شرماتے وہ بہترین اسی طرح اپنا کلچر ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ماڈرن طریقے سے اچھا ہم نے پتہ اس میں کیا کیا ہوا ہے ہم سب کسی نہ کسی انداز میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مجرم ہیں اس سوچ کے پیچھے ایون سو مچ سو میں آپ کو بتاؤں قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مجرم ہیں اگر کسی شہری بابو کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا اور یہ مطلب یہ بڑا ذمہ دار شہری ہے اور اگر کوئی بیچارہ گاؤں دیہات کا جا رہا ہو اس کو پینڈو سمجھ کے دھر لیتے ہیں یار یہ جو تارڑ فیملی ہے اخلاق احمد تارڑ صاحب 22 گریڈ کے افسر ریٹائر اعظم نذیر تارڑ ان کے کزن ہیں حسن نواز تارڑ ڈی سی لاہور تھے اور وہاں پھرنے کی تارڑ گاؤں ہے وہاں سے بڑے بڑے بیوروکریٹ نکلے اس ایک گاؤں سے وہ ساری فیملی جو ہے وہ آئی تھی آئے نا اپنا لہجہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ اسی طرح بولتے ہیں اور ساتھ انگریزی ان کی ایسی ہے کہ یہ بھی حیران ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ کی اپنی انگریزی ذرا نہیں ٹھیک لیکن عزیزی بھائی مجھے تو پینڈو ہونے پہ فخر ہے نہیں تو مگر ہمیں شرمندگی ہے نا اگلے ہی تو کہیں گے پینڈی چو آ کی آیا ہے ہمیں شرمندگی اس وجہ سے ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ پنڈ میں بڑے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں تمہیں دیکھ تو لگتا ہے کہ پنڈوں میں بھی اب قید پڑ گئے اچھا الٹیمیٹلی اس ساری جو منفی سوچ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے نتیجہ یہ نکلا ہے جس کی طرف ہم کئی بار اشارہ کر چکے ہیں وہ ہے آبادی کا بہاؤ دیہاتوں سے شہروں کی طرف شہروں میں جگہ نہیں ہے اور دیہات سے لوگ شہروں میں آباد ہونے کے لیے بےتاب ہو گئے اسی ٹیگ کو اتارنے کے لیے کوئی بچے بھی آنے کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور کوئی صرف اس لیے کہ میں نے مزید گاؤں میں نہیں رہنا ویسے پا جنید میں ایک آپ کو بات بتاؤں اس میں سارا قصور والدین کا ہوتا ہے میں یہ جو تارڑ فیملی کی بات کر رہا ہوں یا دوسرے اپنے دوست ایسے جو گاؤں سے تعلق رکھنے والے جہاں جہاں ان کا گاؤں کا پنڈ کا جو کلچر ہے وہ باعزت ہے اور انہوں نے اپنایا ہوا ہے ابھی تک وہاں میں نے یہ دیکھا کہ بزرگوں نے یہ کام کیا اب سوشل میڈیا اتنا پھیل گیا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں وہ انگلش کلچر دیکھتے ہیں وہ باہر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ویڈیوز یہ وہ شہروں بڑے بڑے شہروں کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں اور یہ ہمارا جو پنڈ کا رہن سہن ہے یہ بیچارہ نہیں یہ غلط ہے بھائی والدین کا کام ہے کہ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ رہن سہن ریتل ہے ہماری یہ کمزوری نہیں ہے یہ جہالت نہیں ہے یہ ہماری ریتل ہے یہ ہمارے رہنے سہنے کا انداز ہے جب یوتھ کسی کو بھی تضحیق کے ساتھ یا
नफरत के साथ या मजाक में किसी को भी पेंडू कहती है तो सबसे पहला फर्ज पेंडू माँ बाप का बनता है कि उसको रोके। बिल्कुल। तो किसको कह रहे हो तुम? असल में बाप का मजाक उड़ा रहे हो, तुम अपने बाप नाना दादा का मजाक उड़ा रहे हो। कोई ना कोई उसे गैर आपके फखर बात- से बताएंगे वाले ते आई रात इन वहाइये पिंड हुन केड़ा केड़ा रहन दे है फखर करें उस पे। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मैं तीनों शोबों का मास्टर हूँ, ऑनलाइन डिग्रियों का ढेर है मेरे पास। हां जी, नाल रद्दी दा काम भी करदा है जी। सर जी मैं आख्या डॉक्टर साहब मेरी सज्जी अख नहीं खुलदी ते कहंदा किन्नू दी छिलण निचोड़ विच। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में खड़ा एक अताई मुआलिज जिसका दावा है कि वो हर मर्ज का इलाज जानता है। आइए इस मामले की खोज लगाने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम जी। पहले तो ये बताएं कि आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक हैं या हकीम हैं? यार ये तो बाद की बहस है ना, पहले ये पूछो कि आप इंसान हैं। वो कहता है कि मेरी पूरे इलाके में बहुत इज्जत है। यार इंसान किसी इंसान के लिए इतनी गैर जिम्मेदारी और खौफनाक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकता जिस तरह का ये कर रहा है। असल में ये पता किस जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है जी। कि ये एलोपैथिक में होम्योपैथिक, होम्योपैथिक में हिकमत की दवाइयां, यूनानी, ये हर चीज का मालिज बना हुआ है। यार एक बंदे को कहता है कि फुलाद खा लो, उसने खा लिया, उसके गुर्दे फेल हो गए। वो फुलाद वाला क्या था सर? लोहे का बूरा। सर जी शफा तो मट्टी से भी हो सकती है। तो फिर तुम्हें मट्टी के सुपुर्द ना कर दिया जाए ताकि कम से कम तुम तो शफा याब हो जाओ। बातें देखो, अंदाज उसका ऐसे लगता है जैसे उस्ताद दामन बात कर रहे हैं। ये डिग्रियां ऐसे नहीं मिलती। अब ये तो बोलो कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास? हिकमत की, एलोपैथ की, होम्योपैथी, किसकी? ओ भाई मैं तीनों शोबों का मास्टर हूँ, ऑनलाइन ढेर है मेरे पास। हां जी, नाल रद्दी दा काम भी करदा है जी। जिसके पास डिग्री नहीं होती वो कह देता है मेरे पास ऑनलाइन डिग्री है। सर मेरी सर की दर्द नहीं जाती थी, मैं इसके पास गया हूँ। मुझे कहता है आप सौंफ रात को भिगो के रखो, सुबह उसका पानी पियो, और मुझे डिस्प्रिन का पता दे दिया। ये देखें दोनों ऑप्शन दिए मैंने, हिकमत की भी दवाई दी, एलोपैथिक भी दी, और बल्कि तीनों ऑप्शन दिए मैंने, साथ दुआ भी की, डोरी बना के दी इसको। सर साहब ऐसा तेज आदमी है, जरा सा अगर कोई अकड़ जाए ना तो फौरन मलंग भी बन जाता है और कहता है मेरे दादाजी का मजार है, और शहर जो बताता है उसका पता है घुग्गे की। कहता है घुग्गे की मेरे दादे का बाजार है। और मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा यार घुग्गे की इस दफा मुझे उर्स पे लेके जाना, तो को कहते नहीं दादाजी ने मना किया सी मेरा उर्स ना मनाना। जब सारा दिन कोई मरीज नहीं आता ना तो शाम को मोटरसाइकिल भी ठीक कर लेता है किसी का। सर जी कोई भी तरीका इलाज हो, साथ रूहानियत जरूरी होती है। ये रूहानियत थोड़ी अपने अंदर भी पैदा कर लो ना। सबसे बड़ा जुल्म पता है ये लोग क्या करते क्या सर? हैं? ये चाहे एलोपैथ करें, होम्योपैथ करें, हिकमत करें, ये स्टेरॉइड्स का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट ये समझते हैं कि मैं ठीक हो गया हूं, और उसके मर्ज का जब बेड़ा गर्क कर देते हैं, जब वो किसी मुस्तनद मालिज के पास जाता है उस वक्त उसको पता चलता है कि उसकी सेहत के साथ ये क्या खेल खेलते रहे। यार अब तो इसने एक छोटी सी गड्डी भी ले ली हुई है। इसके लिए छोटी गाड़ी पता कौन सी है? कौन सी सर? 52 व्हीलर ट्रालर। और यार वाकई इसने अब तो गड्डी ले ली हुई है ना। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, शुरू में इसकी क्लिनिक पे गया जी। मैंने लड़के से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब कितने ने? कहते जी ऐ वेखा तो पौड़ी ते चढ़ के रंग कर रहे हैं। भाईजान सारे काम मैं अपने हाथों से करता हूँ। जी जी जी, जैक भी नहीं लांदा गड्डी नु, हाथ नाल ही चुक के टायर बदल। सर जी वैसे बंदा चंगा है। कोई मरीज कहे ना कि मेरे को पैसे नहीं है दवाई जोगे ते उन्होंने कहंदा जा फिर किलो जलेबियां लिया दे मेनू। सारे तरीका इलाज कुदरती हैं, जिसमें शफा होती है हम उस तरफ चल पड़ते हैं। ये क्या बात हुई यार? देखिए जनाब अली, मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई मरीज कहता है कि मुझे मैदे की गर्मी है, तो एलोपैथी तो इसको मानती नहीं है, तो फिर मुझे हिकमत का सहारा लेना पड़ता है। हाँ जी, इसने मैदे की गर्मी दूर करने के लिए क्लिनिक के साथ ही कांजी की रेडी भी लगाई हुई है। देखो कांजी फौरन बोली है। ओहो, इन लोगों को क्या पता कि कांजी के क्या फायदे। हाँ जी, राती 350 बच जाता है। कांजी दे बहुत फायदे ने। ये जो बच्चा बढ़ बढ़ के बोल रहा है, बचपन में मैंने इसका तंदुआ काटा था।
जी बचपन में ये ऐसे बोलता था, बाजा का जा जी उन दिनों ये क्लिनिक के साथ मोची का काम भी करता था और उधर से ही उठने की इसने मोची वाली रंबी से ही तंदवा काटा था। अब इसको क्या कहेंगे, ये भी एक डिग्री है। यार बस ये डिग्री नहीं है, ये जुर्म है। असल में जुर्म है, असल में लोगों की सेहत के साथ तुम मजाक कर रहे हो यार। कोई किसी एक शोबे में तो तुम मुस्तनद मुआलिज होते हैं ना। ये देखें, इलाज नहीं करवाया तो बीमार फिर रहे हैं, हड्डियों में दर्द है। मैंने इनको कहा था कि 6 किन्नू रोजाना आपने धूप में बैठ के खाने। आगे से इन्होंने कहा तो फिर रोजाना आपने मुझे 6 किन्नू लेके देने। अब ये डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है कि मैं रोजाना इनको 6 किन्नू लेके दूं। मैं डॉक्टर हूं, कोई मेरा किन्नुओं का भाग नहीं है। किन्नुओं की रेडी तो थी आपके पास डॉक्टर। हाँ जी, वो रेडी बेच के ही तो ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन और स्टेथोस्कोप लिया था। और स्टेथोस्कोप सीने पे लगाने से पहले थोड़ा सा नमक लगाते हैं। अरे पगले, इसी को तो कहते हैं खूने जिगर बेचकर इंसानियत की खिदमत कर। गुफ्तगू डॉक्टरों वाली करनी चाहता है मगर आंखें तबले वाले वाली बंद कर। इसी को तो कहते हैं इंसानियत की खिदमत। सर जी मैं आख्या डॉक्टर साहब मेरी सज्जी अख नहीं खुलती तो कहंदा किन्नू दी छिलड़ निचोड़ विच। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह के हवाले से एक इनकलाबी फैसला देते हुए उन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी। अच्छा यार, एक और अपने मुआशरे की बद तहजीबी, बल्कि मैं तो उसे गुनाह कहूंगा, गुनाह है हमारे मुआशरे के अंदर पाया जाता और वो आम है, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। ये पिछले दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह के हवाले से एक इनकलाबी फैसला देते हुए उन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाजत दी है। ख्वाजा सरा एक फयाजुल्लाह उसका नाम है, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन में उसको इजाजत नहीं मिल रही थी बैठने की। हाई कोर्ट ने कहा कि बैठने दो इसे। बिल्कुल बड़ा मैं खुश हुआ हूं ईमान से, और यकीन है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई ख्वाजा सरा भाई पैदा हुआ है तो उसमें उस बेचारे का जाती कसूर क्या है? ये तो रब्बे अजीम का फैसला है ना कि उसने किसे दुनिया में किस अंदाज में भेजना है। औरत भेजना है, उसे मर्द भेजना है, मुझे ख्वाजा सरा भेजना, फुल इज्जत का फैसला है। हम कौन होते हैं उसका मजाक उड़ाने वाले या उसे कमतर समझने वाले? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक गुनाह है और बहुत बड़ी बद इखलाकी है। अच्छा, फिर ये बेचारे जो ख्वाजा सरा हैं, इन्हें सिर्फ मुआशी महरूमियों का ही सामना नहीं करना पड़ता जी। इन्हें जज्बाती महरूमियों का, मुआशरती महरूमियों का, मुआशरे के उस तमस्खर का भी सामना करना पड़ता है। हाँ जी, जो ये रोजाना बेचारे जो फेस करते हैं। देखो ना जरा, हिजड़ा नजर आता है तो हम कॉमेडी शुरू कर देते हैं, मजाक करना शुरू, हम हंसना शुरू कर देते हैं, हम मजाक शुरू कर देते हैं। वो खुदा के वास्ते ये खुदा का बनाया हुआ है, ये रब्बुल इज्जत का फैसला है। यार, हम एक तरफ देखते हैं कि जिस्मानी माजूर या ज़हनी माजूर जो बच्चे होते हैं या अशखास होते हैं, हम उन्हें स्पेशल किड्स कहते हैं, स्पेशल बच्चे कहते हैं जी। उनका हम ख्याल करने की कोशिश करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, बिल्कुल। ये हम में पाया जाता है। तो यार, ये भी जिस्मानी माजूर हैं। हाँ जी, खुदा के वास्ते ये देखें आप, ये जिनसी माजूर हैं, ये डिसेबल बच्चे हैं जी। ये खैबर पख्तूनख्वा में तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई कत्ल हो रहा है, कत्ल हो रहे हैं ख्वाजा सरा। हाँ जी, हाँ जी। खुदा के वास्ते ये बेचारे माजूर बच्चे हैं, इनका ख्याल किया जाए, इनको इज्जत दी जाए, इनको हर स्टेज पे इज्जत दें। अगर डिसेबल जो हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हैं, डिसेबल अदालतों में जा सकते हैं, हाँ जी, तो यार ये क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल। ये इंसान नहीं है, इनके सर में मगज नहीं है। बिल्कुल है। आप हैरान होंगे ये सुन के कि 41% ख्वाजा सरा जिंदगी में खुदकुशी की कोशिश करते हैं। इतने ये बेचारे तंग होते हैं लोगों के रवैये की वजह से।
लोगों के मजाक की वजह से। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो बहरहाल इन लोगों को बेचारों को संभाला देने के लिए हुकूमती सतह पर बेपनाह इकदामात किए गए। बिल्कुल यहाँ हमारे यहाँ भी शुक्र है कि नजर पड़ रही है और अदालतों की नजर पड़ रही है। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उन लोगों की नजर पड़ रही है जिससे इंशाल्लाह को रिजल्ट भी निकलेगा। आप देखें ना बाहर के ममालिक में स्पेशल लोगों के लिए पार्किंग अलहदा है, और अगर वहां पे कोई ठीक आदमी जो है वो पार्क कर दे अपनी गाड़ी को तो बड़ा सख्त जुर्म है। वो गाड़ी के आगे वो डिसेबल का कार्ड रख के जाते हैं, डिसेबल जी जी वो उनको सर्टिफिकेट बकायदा इशू होता है, वो अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के जाते हैं। और अगर किसी गाड़ी के ऊपर वो डैशबोर्ड पे डिसेबल का कार्ड ना पड़ा हो और वो डिसेबल पार्किंग में लगा जाए अपनी गाड़ी तो वक्त पड़ जाता है उन लोगों को। यार क्या कर रहे हैं हम लोग, हम किस तरफ को जा रहे हैं? हम मुसलमान हैं जहां पे अल्लाह पाक ने, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसेबल लोगों के साथ मोहब्बत का इजहार किया और हुक्म दिया है इन लोगों से प्यार करो भाई। हमारा जो माशरा है उसमें हम लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कि मुसलमान हैं, जो कलमा गो है, हम इनका मजाक उड़ा रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए। ये गूंगे बहरे बच्चों के लिए स्कूल हैं, ये नाबीने बच्चों के लिए अदारे बने हुए हैं। बिल्कुल है। तो यार इनके लिए भी अलग अदारे बनाएं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जो स्कूल या अदारा इनको दाखिले से मना करता है या दाखिल नहीं करता, जी, जी। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होना चाहिए वो अदारा। उस स्कूल को या उस कॉलेज को या उस मदरसे को फौरी तौर पे बंद करें जी। कि यार तुम कैसे फैसला कर सकते हो कि ये आम इंसानों में बैठने वाला नहीं है, ये अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है। और अब तो बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं ये ख्वाजा सरा, जैसे देखे ना ये फयाजुल्लाह जो कह रहा है कि भाई मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने की इजाजत दी जाए, तो यार वो इतने जोगा है तो वो कह रहा है। बल्कि ये तालीमी अदारों के अलावा इन बच्चों के लिए मैं तो कहूंगा कि खेल का भी बंदोबस्त करना है, खेल के मैदान भी इनके लिए बनने चाहिए और इनको साथ लेके चलना चाहिए। ये फयाजुल्लाह या इससे पहले एक आयशा मुगल थी, ऐसी मिसालें हैं जो काबिल इस्ताइश हैं। आयशा मुगल ने मेरा ख्याल है 2016 में एमफिल किया और अब वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में दरसो तदरीस के शोबे से मुंसलिक है। माशाअल्लाह। यार अगर आप थोड़ी सी इनको इजाजत दें, इनका साथ दें, इनको प्यार करें तो ये भी आपके साथ मिलके तरक्की में बड़ा हाथ बटा सकते हैं। बिल्कुल। ये वो इफराद है जिन्हें हमें एक अलहदा मखलूक समझने शुरू कर देते हैं। माशरे का बाइज्जत हिस्सा बन सकते हैं ये लोग अगर हम इनको जरा थोड़ा सा प्यार से सीरियसली लें। तो ये भी इंसान हैं, इनके अंदर भी शऊर और अक्ल है। बिल्कुल। ये भी आपके साथ मिलके बहुत से काम ऐसे कर सकते हैं जो शायद हमसे भी नहीं हो सकते। बिल्कुल। मैं यहाँ ये भी वाजे करता चलूं कि हम लोग किसी वक्त गेटअप करके बैठते हैं या मजाक भी बनाते हैं और सारा कुछ करते हैं, हाँ जी। उसमें हम खास तौर पे सिर्फ ये जो हिजड़े हैं, ख्वाजा सरा हैं, हम सिर्फ इनका मजाक ही नहीं बना रहे होते, हम मर्दों के हवाले से भी मजाक करते हम हैं, ये औरतों के तस्दीक हवाले करते चलें कि हमने जब भी हिजड़ों का सेगमेंट करते हैं जी। उसमें हम इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, अर्ज करते हैं कि हिजड़े सिर्फ उन मखसूस 2 या 3 शोबों में न रहें, बल्कि वो आगे बढ़कर मैदान अमल में आए, वो तालीम हासिल करें, बाइज्जत जो रोजगार है वो हासिल करने हाँ की जी। तैयारी और करें। उसके साथ साथ ये जो हमारा शोबिस का है शोबा, इसमें भी वो लोग आए। ये नहीं है कि अगर हमने हिजड़े का गेटअप कर लिया तो हम उसका अल्लाह माफ करे नौजुबिल्लाह उसकी कोई तज़हीक कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम कॉमेडी बिल्कुल क्रिएट कर रहे हैं, मगर ये उसमें उनकी हम तज़हीक नहीं कर तज़हीक रहे और हैं। मिजाह में फर्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहता हूं कि ना हमवारी की वजह से, अनइवननेस की वजह से कॉमेडी क्रिएट होती है। इसलिए वो मर्द हो या औरत हो, हम किसी वक्त अगर किसी पके रंग वाले का मजाक उड़ाते हैं तो वो तस्हीक नहीं है यार। ये कॉमेडी क्रिएट करने के लिए इन चीजों का सहारा लेते हैं हमेशा से मज़ाक निगार, और वो कोई बुरी बात नहीं होती। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और आज की छोटी सी बात ये कि अगर इतवार का दिन आपके अंदर जोश और खुशी पैदा नहीं करता तो अपने दोस्त बदल दीजिए, और अगर पीर का दिन आपके अंदर एक तहरीक पैदा नहीं करता तो अपना पेशा बदल दीजिए। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।